مجھے جب پہلی دفعہ پتا چلا، جب ہماری گورنمنٹ ہٹائی گئی، تو مجھے پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی. میں نے ویڈیو بنا کے باہر بھیجی اور پبلک جلسے میں بتایا کہ یہ میں نے کر دیا اور اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی. اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اگلا انہوں نے پلان بی بنایا، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کیا جائے. وہ بھی مجھے پتا چل گیا. اب یہ تیسرا پلان سی بنا ہے. آصف زرداری اس کے پیچھے ایک دہشت گرد تنظیم کو اس نے پیسہ دیا ہے. سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے. مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کروایا. جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے اور آصف زرداری کے علاوہ یہ انجوائے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی، تو میں اس لیے ان کے نام لکھے. آصف زرداری نے مجھے قتل کرنے کے لیے دہشت گرد تنظیم کو پیسے دے دیے. عمران خان کا الزام، کہا طاقتور لوگ اس منصوبے کے سہولت کار ہیں. ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو پتہ چل جائے گا. زرداری سمیت کون 5 لوگ ملوث ہیں. لوگوں کو ان کے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ زندگی کا لطف نہ اٹھا سکیں. عمران خان نے الزام لگایا کہ وزیر آباد میں ان پر حملہ مذہبی انتہا پسندی کی آڑ میں کیا گیا تھا، جو تقریباً کامیاب ہو گیا تھا. پہلے پلان کا پتہ چلنے کے بعد ویڈیو ریکارڈ کروائی جو قتل کے بعد سامنے آئے گی، لیکن وہ گھر پر نہیں بیٹھیں گے، 2 ہفتوں بعد باہر نکلیں گے. عمران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ جو اس قسم کی گفتگو کرتے پھر رہے ہیں نا، جس طرح سے یہ 25 مئی کو کر رہے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھر 26 نومبر کو یہ سمندر لا رہے تھے، تو اس کے اوپر میرا ذہن بنتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ گرفتار کرنا چاہیے تاکہ یہ جو طوفان لانا چاہتے ہیں نا، ایک دفعہ پھر یہ دیکھ ہی لیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ کچھ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ تو نہیں، لیکن جیسے بیانات وہ دے رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ انہیں ایک بار گرفتار ہو جانا چاہیے. دیکھ ہی لیں کہ یہ کیا طوفان لاتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا آج نواز شریف سے میٹنگ ہوگی. مریم نواز 1 فروری سے پنجاب و خیبر پختونخوا کا دورہ شروع کریں گی. فواد چودھری پر درج مقدمے کو سیاسی قرار دینا بھی مسترد کر دیا. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ فواد چودھری کی گرفتاری کو سیاسی کہنے والے کو FIR پر لینی چاہیے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے معیشت کو آگ لگائی، مہنگائی کی تباہی پھیلائی. معیشت کی بات کرتے ہوئے کچھ تو شرم آنی چاہیے. فورن ایجنٹ خود گھر میں چھپا بیٹھا ہے اور عوام سے کہتا ہے کہ گھروں سے نکلیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے اسلام آباد پولیس، خیبر پختونخوا پولیس اور FT کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی. اسلام آباد پولیس کا ایک DSP اور 170 اہلکار بنی گالہ میں تعینات تھے. KP پولیس کے 50 اہلکار بھی واپس بھیج دیے گئے. محکمہ داخلہ پنجاب کا بھی محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کو مراسلہ، کہا زمان پاک سیکیورٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں کو واپس بلا لیں. فواد چودھری کا مزید جسمانی ریمانڈ نہیں ملا، عدالت نے جوڈیشل کر دیا. فواد چودھری کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. B کلاس ملے گی یا C کلاس، اب تک فیصلہ نہ ہو سکا. میڈیکل چیک اپ کے بعد بیرک الاٹ ہوگا. فواد چودھری کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیشی پر فواد چودھری نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ تحریک انصاف کے ترجمان ہیں. انہوں نے جو بیان دیا وہ جماعت کا موقف ہے، ضروری نہیں کہ ان کی ذاتی رائے بھی وہی ہو. عدالت میں فواد چودھری کو گھر والوں سے ملنے کی اجازت، ہتھکڑی بھی کھلوا دی گئی. عدالت سے واپس لے جاتے ہوئے فواد چودھری کی اہلیہ کی پولیس سے تکرار. ہبا چودھری بولی فواد چودھری پر چادر نہ ڈالی جائے. تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے، ہاں تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے.
पार्टी ने डिसाइड किया कि मिफ्ता को हटा दो, या मियाँ साहब ने डिसाइड किया कि मिफ्ता को हटा दो। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। तो मुझे इसका कोई गम नहीं है कि मुझे हटाया, लेकिन जिस तरीके से हटाया वो तरीका सही नहीं। मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। मुस्लिम लीग नून ने अपने माजी के असीर रहनुमाओं को ना भूलने का पैगाम दिया, लेकिन खुद अपने साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को भूल गई। सोशल मीडिया पर रहनुमाओं की गिरफ्तारी की तस्वीर लगाकर हम भूले नहीं ना भूलने देंगे का पैगाम सब तक पहुंचाया, लेकिन मिफ्ता इस्माइल की गिरफ्तारी याद नहीं रही। मिफ्ता इस्माइल को 7 अगस्त 2019 को LNG केस में गिरफ्तार किया गया था। 27 दिसंबर 2019 को जमानत पर रिहाई मिली थी। डॉलर आज भी हवाओं में, उड़ान तेज नहीं बहुत तेज। इंटरबैंक में 7 रुपए 17 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक रेट 262 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 7 रुपए बढ़ गई। $1 265 रुपए का हो गया। 2 दिन में इंटरबैंक में डॉलर 32 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। 2 दिनों में पाकिस्तान की कर्जों में 4000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 7000 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 2,02,500 रुपए हो गई। अल्लाह इंशाअल्लाह हिम्मत देगा। इनकी लीडरशिप में पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। हम लोगों की एज ए नेशन वो नीयत और हार्ड वर्क दरकार है। ये क्वागमार जो है ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमार नहीं है। ये उस 5 साल की जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह हमें हिम्मत देगा। पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। मेरा ईमान है पाकिस्तान तरक्की करेगा। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान दुनिया में बाकी रहने के लिए कायम हुआ है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर बना। अगर अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया है तो इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली इसके जिम्मे है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को बेपनाह चैलेंजेस मिले हैं। मईशत की बेहतरी मुश्किल हदफ है। कोशिश करेंगे इलेक्शन से पहले बेहतरी लाएं। पनामा ड्रामों का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। नवाज शरीफ के दौर में मईशत मजबूत हो रही थी। IMF से इसी माह मुआहिदा हो जाएगा। मुश्किलात से बाहर निकल आएंगे। एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखकर इंपोर्ट की फौकियत के लिहाज से लिस्ट तैयार की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीर का खिताब में कहा कि ग्रीन लाइन की बुनियाद नवाज शरीफ के दौर में रखी गई। बदकिस्मती से दीगर मंसूबों की तरह ये मंसूबा भी दम तोड़ गया। साद रफी के बाद रेलवे का क्या हशर हुआ देख लें। 4 साल में चीन के साथ ताल्लुकात को ठेस पहुंची। चीनी कंपनीज पर करप्शन के बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। हम कब तक दूसरों के सहारों पर चलेंगे। ये सफर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। दिन रात काम करना होगा, कुर्बानी देनी होगी। ये डेथ एक दिन का नहीं, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये मुसलसल डेथ होती रही हैं। कराची के मवाज कोर्ट में 2 हफ्तों के दौरान 18 अफराद की पुरस्कार मौत की वजह क्या बनी। महकमा सेहत की टीम मवाज कोर्ट और अली मोहम्मद कोर्ट के मुतासरा इलाकों में मौजूद। डायरेक्टर हेल्थ कराची का कहना है कि इंतकाल करने वाले अफराद को बुखार, गले में सूजन और सांस में तकलीफ की शिकायत थी। इब्तदाई तहकीकात में किसी केमिकल के बायस फेफड़ों की बीमारी सामने आई है। इलाके में प्लास्टिक बनाने वाली 4 फैक्ट्री सील, 1 फैक्ट्री के मालिक समेत 5 अफराद गिरफ्तार। माहौल में केमिकल या गैसेस की मौजूदगी जांचने के लिए माहौलियाती मोबाइल टीम तलब। डेप्टी डायरेक्टर सेफा मुनीर अहमद अब्बासी का कहना है कि इन्वायरमेंटल सैंपल लिए गए हैं, जल्द रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी हलाकतों पर इज़हार तशवीश, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा।
रक्स करके दिखाओ फिर राशन ले जाओ। गुजरांवाला में हिलाल अहमद के दफ्तर राशन लेने गए ख्वाजा सराफ से मुलाजमीन ने पहले रक्स करवाया फिर राशन दिया। वीडियो भी सामने आ गई। मुलाजमीन ने ख्वाजा सराफ पर नोट निछावर किए और गैर अखलाकी हरकत भी करते रहे। ख्वाजा सराफ का कहना है कि डांस के बाद मुलाजमीन ने उसे राशन बैग दिया। डिप्टी कमिश्नर ने वाकई की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी के इलाके टिब्बी ज़ैदा में पोल्ट्री फार्म पर डकैती, 12 डाकू 3 गाड़ियां साथ लाए थे, 5000 मुर्गियां लेकर फरार हो गए। पोल्ट्री फार्म के मालिक का पुलिस को बयान, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। खैर करिए थे बिल्कुल ठीक। तुसी सुनाओ, मैं बस सादा हाल चाल पूछना सी। छुट्टियां बड़ा सही जा रहा काम। फवाद लेट पड़िया ने आज सुबह 5 बजे फड़ लेना, महीना पहला समझिया नहीं टुटनिया। सही बिल्कुल ठीक है। मोटे मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें। 1 साल और लग जाता ना ते ऐसे तो इन्होंने कपड़े भी नजर नहीं छाने नून लीग दे 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना था। फवाद चौधरी को देर से गिरफ्तार किया गया। 1 महीना पहले गिरफ्तार कर लेते तो असमिया न टूटती। चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऑडियो में फवाद चौधरी के लिए नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। काफ लीग के अरकान से खिताब में भी परवेज इलाही ने कहा कि उन्होंने बहुत समझाया कि अभी काम करने दें, मगर खान साहब के करीबी लोगों ने पार्टी की जड़ें काटी। 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है। अगर वो पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक ही रहता। बाद में परवेज इलाही ने अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा, फवाद चौधरी की फैमिली से हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का जश्न परवेज इलाही मना रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तंजिया तबसरा। कहा, लगता है इमरान खान गिरफ्तारी के खौफ से जमान पार्क में छुपे हुए हैं। मोहसिन नकवी अच्छी शोहरत रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनका इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक किया। आसार न्यूट्रलिटी के नजर नहीं आ रहे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी बुनियाद क्या है। हमारे जो ग्राउंड पे लोग हैं, हमारे MPA, हमारे MNA, अभी भी उनसे कहा जा रहा है कि आपका मुस्तकबिल जो है वो तहरीके इंसाफ के साथ जो है वो शायद बहुत रोशन ना हो। जैसे ही निगरां हुकूमतें बनी हैं और उन्होंने एकदम से सियासी इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की हैं, तो ये इतना जो तगड़ा उनका हाथ है, ये सिर्फ उनका नहीं है, उनके पीछे भी कोई मजबूत ताकत जो है उसकी हौसला अफजाई मौजूद है। इस वक्त भी गैर जानिबदारी नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ की असद उमर की दुहाई। वजह ये बताई कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI अरकान तोड़ने के लिए राबते किए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि PTI के साथ आपका मुस्तकबिल रोशन नहीं। निगरान हुकूमतें बनते ही जिस तरह इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई, उसके पीछे किसी मजबूत ताकत की हौसला अफजाई मौजूद है। आइन से इनहराफ करके इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जा रहा। अगर 90 रोज के अंदर अंदर जानबूझकर इंतखाबात नहीं कराए जाते तो आर्टिकल 6 लगता है। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी। ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। एक्स आर्मी चीफ को भी मिलता था। असल तो मास्टरमाइंड वो था, लेकिन जितने भी प्लेयर्स उसके इर्द गिर्द थे, उसमें एक प्लेयर जिसका सबसे ज्यादा नाम आता था, उसका नाम मोहसिन नकवी। इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीर आला तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वजीर आला काम से रोकने की इस्तदा। PTI ने अपने मुनहरिक फरोकुन राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन और इकरामुल्लाह की तैनाती गैर आईनी करार देने की इस्तदा। पंजाब में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए असद उमर ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में गवर्नर को सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करने की हिदायत देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद है। गवर्नर पंजाब का इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करना आईनी स्कीम को सबूताज करने के मुताबिक है।
रहनुमा PTI फारूक हबीब के खिलाफ शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज, डकैती और मुलजिम को छुड़ाने की दफात शामिल। मुकदमा विफाकी पुलिस के अफसर अदील शौकत की मुद्दत में थाना फिरोजवाला में दर्ज किया गया। कहा गया कि मुलजिम फवाद चौधरी को सफरी रिमांड पर लेकर इस्लामाबाद रवाना हुए। काला शाह काकू टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने एंट्री पॉइंट पर गाड़ियां लगाकर रास्ता रोक लिया। पुलिस एहलकार की यूनिफॉर्म फाड़ दी, वायरलेस सेट छीन लिया। PTI के साबिक MNA फारूक हबीब इन लोगों की क़यादत कर रहे थे। मरियम नवाज लंदन से अरब अमारात पहुंच गई। आज दुबई में क़याम के बाद कल शाम लाहौर पहुंचेगी। लंदन से रवानगी के मौके पर नून लीग के कारकुनों की ढोल की थाप पर भंगड़े। कहा मरियम नवाज के पाकिस्तान जाने से मुस्लिम लीग नून में नई जान पड़ जाएगी। अब नवाज शरीफ भी जल्द पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज 1 फरवरी से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। मियां नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पर तबादला ख्याल तय किया गया कि वतन वापस पहुंचकर मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में कन्वेंशन भी करेंगे। लाल हवेली को वापस अपनी तहवील में लिया जाएगा, वक्फ अमलाक बोर्ड का ऐलान। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि शेख रशीद और शेख सदीक की दी गई दस्तावेजात मुकम्मल नहीं, जिसने मुजाहमत की उसके खिलाफ पर्चे कटेंगे। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने इल्जाम लगाया कि लाल हवेली को सील करने की तैयारी हो रही है। शेख रशीद ने कहा कि रेंजर्स या FCI तो लाल हवेली का कब्जा ऐसे ही दे देंगे, पुलिस या FIA आई तो निमट लेंगे। कौमी असम्बली की 37 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करवाए जाएंगे। जांच पड़ताल 13 फरवरी तक होगी। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 22 फरवरी होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 33 नशिस्तों में कराची की 9, इस्लामाबाद की 3, पंजाब की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 8 और बलूचिस्तान की 1 नशिस्त शामिल है। वज़ीर मेहनत सेन सईद गनी ने कहा कि जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है, फॉर्म 11 पर नतीजा कुछ और है और जो नताइज जारी किए गए वो कुछ और हैं। एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई कि जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर 25 तारीख को समाअत होगी। हाफिज नईम चाहते हैं कि दोबारा गिनती में इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा शामिल हो। कुछ दिनों पहले मुझे डॉक्टर आसिफ शेख कह रहे थे कि आप आके कुछ पढ़ा दें। मैंने कहा मैं कुछ नहीं पढ़ा सकता, वो उस काबिल रहे नहीं पढ़ाने के, लेकिन पढ़ने जरूर आना चाहता हूँ दोबारा। हम जैसे ओल्ड टाइमर्स के लिए ना कोई रिफ्रेशर कोर्सेज करें तो बड़ा मजा आएगा अगर हम किसी तरीके से पढ़ सकें आके वापस फीस ले लें हमसे ना, उसी तरीके से आप अपने हम फीस देने के काबिल अब हो गए हैं सारे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ज़माना तालिब इल्मी की आस सताने लगी। दोबारा NED यूनिवर्सिटी में दाखिले की ख्वाहिश। जामिया की तकरीब से खिताब में कहा कि अगर पुराने तलबा को रिफ्रेशर कोर्स में दाखिला दिया जाए तो बहुत मजा आएगा। शुरका को बताया कि उन्होंने जिन इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है बाद में वहाँ वापस भी गए, उन्हें अपने पुराने तालीमी इदारों में जाना बहुत अच्छा लगता है। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ओहदे पर बहाल कर दिया। निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे में तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी। तजवीज़ पर पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। पाकिस्तान को खत लिख दिया। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह ने खत मिलने की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब पाक भारत पानी के तनाज़े पर दी हेग की सालिसी अदालत में समाअत शुरू हो गई। वाटर कमिश्नर ने कहा कि दी हेग में समाअत से वापसी पर भारतीय खत का जवाब देंगे, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने अपने इलामी में कहा है कि सिंतास मुआहदे में तरमीम नहीं की जा सकती। ऐसी गुमराहकुन खबरों का मकसद सालिसी अदालत में जारी कार्रवाई से तवज्जो हटाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि सुओ मोटो का इख्तियार इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि इदारे खुद काम करें। अदालत रियासती इदारों को मजबूत करना चाहती है। मौजूदा सियासी हालात में आईनी और हुकूमती इदारे सिर्फ कानून के मुताबिक काम करें। डॉक्टर महरीन बलोच की बच्चियों की बाजियाबी के केस में रिमार्क।
अदम बाजियाबी पर बरहमी का इज़हार। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सुओ मोटो नहीं ले रहे, लेकिन बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पंजाब और सिंध को पुलिस मुदाखलत के मामले में बेहतरी लानी होगी। केपी पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होती। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल पहले से काफ़ी बेहतर है। वो फाइनेंस मिनिस्टर है, जब आया वहाँ से लंदन से, कहता है मैं जैसे ही जहाज पे चढ़ा तो जो है वो डॉलर जो है डिप्रिशिएट होना शुरू हो गया, रुपया जो है मजबूत होना शुरू हो गया और मेरे आते आते ही 1200 अरब रुपए के जो है कर्जे जो कम हो गए। तो आज उनके होते हुए एक ही दिन में 34 रुपए जो है आपका जो है रुपया गिरा। मिर्जा और इसहाक डार ने कौम से झूठ बोला। मिर्जा इस्माइल को निकाला गया तो वो मजलूम बन गए। डॉलर एक दिन में 34 रुपए बढ़ गया। मुल्क में महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा। तहरीक इंसाफ में शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहा IMF 3000 अरब रुपए के टैक्स लगाने की बात कर रहा है। हुकूमत के पल्ले जो कुछ पड़ेगा ये इसके रेट बढ़ाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। IMF से जो डील होगी इससे आवाम पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां। मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोधा, हैदराबाद, नवाबशाह, जैकबाबाद, सुजावल, मानसहरा, मर्दान, कोहाट, नकियाल, आज़ाद कश्मीर समेत दीगर शहरों में मुजाहरे किए गए। जमात इस्लामी का कराची के तारिक रोड पर एहतजाज। जमात इस्लामी का कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी में भी एहतजाजी मुजाहरा। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी रावलपिंडी में रैली निकाली। अमेरिका में 12 साल से ससुरालियों के जबर का शिकार पाकिस्तानी खातून को इंसाफ मिल गया। वर्जीनिया की अदालत ने खातून की सास और उनके 2 बेटों को जेल भेज दिया। मुजरिमों पर मुतासरा खातून को $2.5 लाख जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। 80 साल जाहिदा अमान और उनके 2 बेटे खातून पर घरेलू तशद्दुद में मुलविस पाए गए। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक खातून से जबरी मुशक्कत करवाई जाती थी। बच्चों के सामने तशद्दुद किया जाता था। सफरी दस्तावेजात छीन कर रख ली थी। पाकिस्तान में घर वालों से राबता मुनक़ता कर रखा था। अदालत ने मई 2022 में केस की समाअत की और रवां बरस 24 जनवरी को फैसला दे दिया। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला आने को तैयार। बलूचिस्तान में आज से मगरबी हवाएं दाखिल होने का इम्कान। जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में हफ्ते और इतवार को हल्की बारिश मुतवक्के। कराची में भी यकबस्ता हवाओं का राज। हफ्ते और इतवार को चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। अभी आपको बताएं, वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार इस वक्त खिताब कर रहे हैं और लोगों को और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। इनको अच्छी तरह पता है कि